Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam yapi. Yasno but ka ICA. U Menteri Rangba Kajala u Konrad Ki Sangma u lalejngo ya kasinong paham jula kasinong kapalasyong dom menta la khatpras nam kanthi klem boarding namar ka jingdo u transformer. Kani kasinong kabadan nyaw punyaw tali kitunum ying brio kadai ka baha Hajirang constituency kala do u transformer nadu usnam arajar nyaw la sanran yo Konrad do MLA Kajirang u ba sostina soton. Shuabo Menteri Rangba unlet chakanik sinong kinong yalam sinong haringkat u MLA kilaya kendo ya u ban pensngau ya kajing e ba kani kasinong kalay kendo batang hadin hapo sitayaw jong kajing kendo ya u Konrad kani kasinong menta kalayo boarding biang kinong song sinong kila pediang sobha yo Menteri Rangba bat kilaong ba kajingwan yu kajat jong u kadai kalinti jong kajingkermen ya kasinong namar ba shuabo unwan ru ula peni iswa dakikam. It's really unexpected that Chief Minister will visit Pamjula. So, as the local MLA, I would like to thank the Honorable Chief Minister, Sir Konrad K. Sangma, and I would like to tell you, sir, that turning point which has changed the area of right from Chibra to Bangalore, Pinker B, Pinker C, Pinker A, Umsen, and then this Pamjula area and Umlatu. It's the big project which you yourself, you came to lay the foundation stone of the NEC road connecting from 9 Mile to Umsen. There at the village of Umtanga, and the people of these areas, instead of spending time going right from this village, reaching Umtanga, it'll take almost 3 to 3.5 hours. But now people, they will be reaching within 15 minutes. It's really a big blessings for the people of these areas, and I would like to thank our Honorable Chief Minister. Not only one project, you have given many projects to Jirang constituency for the last 7 years. Jirang constituency is changing because of your dynamic leadership, sir. You have listened to every conversation. You have listened to every petition given by your local MLA and given by the public of Jirang constituency. According to me, I would say that we will never have, or I never see such Chief Minister as Sri Konrad K. Sangma. He is the best Chief Minister. He is the working Chief Minister, listening to each and every community, listening to each and every villages. So, Jirang constituency is a very big constituency. We have more than 230-40 villages, and in spite of your hard work, your government has given many projects to our constituency, but still we lag behind in many other ways. So
our high hope is upon you, sir, as we are always looking to you as our leader. So we are expecting that you will change Jirang constituency from one year to another. यहाँ पे जो आपके गांव में पिछले बहुत सालों से जो आपको दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रहा था, जहां आपका जो ट्रांसफॉर्मर जो जलने की वजह से, खराब होने की वजह से बहुत सालों तक 17 या 18 सालों तक आपको यहां पे बिजली नहीं मिली। मेरे पास आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए श्री बादेंग सोतुन जी वो आए और उन्होंने इस प्रॉब्लम के बारे में मुझसे बात की। मैं आज बादेंग सोतुन जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उनकी वजह से आप लोग को बिजली यहां पे आज मिली है। अगर बादेंग सोतुन जी मुझे नहीं बताते, मेरे दोस्त मिस्टर रेमन मुझे नहीं बताते, तो शायद आपका ये ट्रांसफॉर्मर आज तक रिप्लेस नहीं होता। इसलिए एक बार फिर एमएलए साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे यहां पे आने का मकसद यही है कि इतने सालों से जो डेवलपमेंट आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिला नहीं। जिरंग कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत सालों तक एक तरीके से पिछले सरकारों ने पीछे रखा था। चाहे आपके रास्ते क्यों ना हो, आपके स्कूल क्यों ना हो, आपके अलग अलग अस्पताल सब सेंटर क्यों ना हो, आपकी बिजली क्यों ना हो, जिरंग कॉन्स्टिट्यूंसी को जो ध्यान मिलना चाहिए था, जो डेवलपमेंट आना चाहिए था, वो पिछले सालों में या पिछली सरकारों के समय में आपको नहीं मिला। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 7 साल में बहुत ही तेज गति से जिरंग कॉन्स्टिट्यूंसी को बदलने के लिए, जिरंग कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट लाने के लिए बहुत ही तेज गति से हमारी इस एनपीपी सरकार ने और आपके एमएलए श्री बादेंग सोतुन जी ने काम किया है। मुझे 2021-2020 का जो आपका इस रास्ते का पिक्चर मुझे मेरे दोस्त ने दिखाया कि 5 साल पहले यहां गाड़ी क्या पैदल चलना मुश्किल था। यहां से आपको उम्तगार जाते जाते 2 घंटे 3 घंटे आप लोग को समय लगते थे। हमारे किसानों को जो अलग अलग सामान, जो अलग अलग वेजिटेबल्स, फल फूल जो उनको बेचना था, उसको बर्नीहाट एरिया, उम्तगार एरिया या कोई भी मार्केट एरिया तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत मिलती थी। लेकिन
हमारी इस सरकार के समय में ये जो रास्ता है जो 50 साल तक जिसे पिछली सरकारें भूल गई थी, छोड़ दिया था, हमने 7 साल के अंदर आज आपको ये रास्ता बना के दिया है। और जैसे एमएलए साहब ने कहा, जो रास्ता 3 घंटा लगता था, आज 15 मिनट में आप उस रास्ते को आप पूरा कर पा रहे हैं। और इसी गति से हमारी सरकार आगे बढ़ना चाहती है और हमारे अलग अलग गांवों को, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे आगे चुनौतियां बहुत सारी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट करने हैं। जैसे एमएलए साहब ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने सब पूरा कर दिया, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे रास्ते ऐसे भी अभी हैं जो हम लोग अभी आए, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिन्हें हमें नए बनाने हैं। बहुत जगहों में नए स्कूल चाहिए, कम्युनिटी हॉल चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन इन चीजों को बदलने का जो हमारा काम है, वो काम अब शुरू हो चुका है। मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारे एमएलए साहब पूरे दिल से और जान से यह बदलाव लाने के लिए हम काम करेंगे। मेरे पास आए, आप हेडमैन साहब से पूछिए, हेडमैन साहब के सामने ही 10 मिनट के अंदर एमएलए साहब से बात कर एमएलए साहब ने कहा कि इसे पूरा करना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर ये ट्रांसफॉर्मर को हम लोगों ने यहां पे लाके दिया और आज आपके गांव में आज बिजली वापस आ गई है, फिर से वापस आ गई। और जो एमएलए साहब ने कहा कि अलग अलग गांवों में जहां बिजली आज भी नहीं है, हम साथ में बैठेंगे। जहां छोटी छोटी प्रॉब्लम जैसे ट्रांसफॉर्मर को बदलना है, उसको हम लोग बदलेंगे। लेकिन जिन गांव में पोस्ट लगाना है, वायर डालना है और नया पावर सिस्टम लगाना है, शायद कुछ समय लग सकता है। लेकिन जहां जहां छोटी छोटी प्रॉब्लम चीजें हैं, उसे हम पूरा करेंगे। एमएलए साहब के साथ बैठकर जहां जहां काम करना है, उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे।